first of all, this region being a hilly area, so all our constructions have to be carried out in hilly terrain mostly. So this is a challenge to our engineers here. And another thing is the inclement weather that the organization faces. January to July, generally rain is it's a rainy season, so leaving hardly barely 5 months of working time for our engineers. And also our engineers have to take up construction works in snow-clad areas. That's also a challenge. And the most important thing is our Arunachal Pradesh, falling under specific zone 5, it's a very high risk area. So this is a major challenge. All of these are happening because we are not clear about the arbitration and dispute resolutions, which I don't know how many of you read. I was forced to read clause 20 of the general conditions of contract, any works contracts which you follow, that talks about the dispute resolution expert. If the DRE, how do you appoint a DRE? If the DRE is whatever he recommends, if it is not acceptable to either the department or to the contractor, then you go for an arbitrator out there. Now in this case, what should have been done, and why I'm giving this example is similar notices are still coming in from 1 or 2 firms to chief engineers, to their super engineers, and to the division executive engineers concerned, stating that these are the pending payments we have done, so please give us 18% interest or whatever accrued over that. What you are supposed to respond, we are not supposed to keep quiet. All of us who are in the field are supposed to respond to these notices the same way highway executive engineers do, which is not being done in the normal PWD zones or RWD zones, etc. Visionary person goes beyond that. What else? And how I can make it good? There are areas where you find that the roads, the landslides or the hillsides crumble. Sometimes what they do, they carve out a large portion and make a little space next to the road, which can either be used for parking or some refreshment thing comes up there. You know, biggest problem when we start the tourism in our state, the hospitality matters have to be increased. Traveling almost 5 hours and I don't find a place to stop. It troubles me. It troubles the people who are traveling. So when you are building these roads and you are creating these assets, these could also be taken into consideration. It will be a double whammy. Your road is done, you have contributed to the infrastructure, you have contributed to tourism in times to come. So if by planning these issues can be taken care of, it will help us. पर्टिकुलर इंजीनियर लोग के लिए आपको करा रहा है, क्या क्या सिखाया जाएगा सर? इसमें ऐसे है, हम लोग का इंजीनियर लोग का तो ठीक है, ये थ्योरेटिकली ऑल ऑफ देम नो इट, बट प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा ये होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है. देयरफॉर इसको रिकैप्चुलेट करना है. दे हैव आल्सो दे आर इन द फील्ड में होने से भी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हिल रूट्स के बारे में सिंपली हिल रूट बोलने से नहीं होगा. दे आर लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रिकॉशनरी मेजर, डिजाइन करना है, सर्वे इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है, हाउ टू मिटिगेट द लैंडस्लाइड, वो सब है. वी हैव आस्क्ड द माने हाईएस्ट इफेक्ट्स बॉडी हु वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ रूट डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूट ट्रांसपोर्ट हाईवे, उसने पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चलाया है, रोड का हाईवे का चलाया है. तो ऐसे आदमी को हम बुला के इसका एक्सपीरियंस एंड कैसे कैसे करना है, ऐसे वाला को बुलाया. वेरी बेनिफिशियल टू द रूट कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट. फॉर एग्जाम्पल हमारा यहाँ में तो RWD, PWD रूट बनाता है, तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा. कैसे मिटिगेट करना है, लैंडस्लाइड कैसे करना है, कैसे उसको प्रिकॉशनरी मेजर लेना, सर्वे इन्वेस्टिगेशन करना, कैसे कंस्ट्रक्शन करना, उसका बारे में. दूसरा है हमारा एक बिल्डिंग के बारे में. बिल्डिंग तो सभी डिपार्टमेंट बनाते हैं, हमारा वो वर्क डिपार्टमेंट, एवरी मैंने दिस वर्क डिपार्टमेंट दे बिल्ड द बिल्डिंग्स. इसलिए बिल्डिंग का भी एक नॉर्म्स है, कैसे करना है, क्या करना है. बहुत ही ये नॉर्म्स होता है. जैसे फॉर एग्जांपल एक अगर ऑफिस बनाना है, उसमें
इसका स्क्वायर फीट स्क्वायर मीटर डिपेंडिंग अपॉन द पे स्केल ऑफ द गवर्नमेंट, इसको या डिस्ट्रिक्ट बोलता है, या डिस्ट्रिक्ट के बारे में। और बिल्डिंग का भी तो अभी जैसे हमारा अरुणाचल प्रदेश ये जून 5 में पड़ता है, अभी इसको रिवाइज करके जून 6 करने को जा रहा है, जो सिस्मिक जून, उसको भी ये इंडियन ये सिस्मिक जून को भी अभी रिवाइज कर रहा है, रिसेंटली सितंबर महीना में इसको पब्लिश होगा बोलता है। इसलिए यहाँ में भी सिंपली ऐसे रूट बनाने से बिल्डिंग बनाने से नहीं होगा, इसका इफेक्ट देखना पड़ेगा, इसका कैसे बिल्डिंग बनाएगा, वो चीज़ आर्ट क्विक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाना पड़ेगा। और बिल्डिंग का भी तो यहाँ में आप अरुणाचल प्रदेश में देख रहा है, इंजीनियरिंग का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एक मिस्त्री लेके आ जाता है, बिल्डिंग बना देता है, उसमें कितना रोड चाहिए, कितना इसको ये कैसे करना, कितना सीमेंट चाहिए, कितना गिट्टी बालू चाहिए, कैसे कैसे लगाना है, वो सब प्रैक्टिस नहीं हो रहा है। ऐसे होने से बाद में अगर बाई चांस आर्ट क्विक जैसे 1950 के माफिक आ जाने से प्रॉब्लम आ जाएगा। इसलिए उसका बारे में भी, बिल्डिंग का बारे में भी बहुत अच्छा से ये मैंने यहाँ में अभी ट्रेनिंग होगा। एक्सपर्ट इन CPWD का जो स्पेशल डायरेक्टर जनरल में ये CPWD में रहा है, वो अरुणाचल का में भी बैकग्राउंड रहा है। जैसे हम बताया, यहाँ में फर्स्ट पोस्टिंग हुआ था एशियन एजुकेटर, हम लोग एक साथ में काम किया। ही इज एक्सपर्ट इज बिल्ट इन एनवायरमेंट, बिल्डिंग के बारे में बहुत एक्सपर्ट वाला आदमी को बुलाया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट से। नेक्स्ट हो गया है हमारा आपका ये हमारा मैंने रेट्रोफिटिंग, जो पुराना बिल्डिंग को कैसे स्ट्रेंथनिंग करना है, और हमारा बिल्डिंग में प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में कितना प्रॉब्लम होता है, वो सब के लिए ये होता है, ये प्रॉब्लम कैसे होता है फील्ड में। ही इज एक्सपर्टाइज इन द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड ये फील्ड प्रॉब्लम का इंजीनियर दिस RK Majumdar, who is the IS, retired as a director of urban development, government of Tripura. उसने बहुत ही एक्सपीरियंस है, ही हैज गॉट अ मच एक्सपीरियंस, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, IS में इंडक्शन हुआ है, तो उसका भी बहुत एक्सपीरियंस है। अभी रिसेंटली भी इसने बहुत से ये बिल्डिंग के बारे में ये बेस्ट करना किया। लास्ट है हमारा अपना यहाँ का जो फोर्डा के इंजीनियर डॉक्टर अक्टब लेगो साहब, हु इज एक्सपर्टाइज इन द, हम लोग जो बोलता है डिजाइन के लिए, स्ट्रक्चरल डिजाइन में। और स्ट्रक्चर डिजाइन ब्रिज का भी, ब्रिज का तो ऐसे बनता है, ब्रिज का भी बहुत सा सिस्टम होता है, ब्रिज का भी देयर आर मेनी टाइप ऑफ ब्रिजेस है, तो ब्रिज का भी ऐसे बनाने से नहीं होता। आप तो सुना है बहुत सा ब्रिज आपका बड़ा बड़ा स्टेट में, जैसे स्पेशली इन बिहार वो सब में गिर रहा है। अरुणाचल प्रदेश में भी ऐसा होने का माना ये है, इसलिए हम लोग इसको प्रिकॉशनरी मेजर लेके हमारा इंजीनियर लोग को सिखाना चाहता है, ब्रिज कैसे बनाना है, क्या प्रिकॉशनरी मेजर लेना है, कैसे क्या फाउंडेशन होना है, वो सब का बारे में हमारा यहाँ का जो डॉक्टर अक्टब लेगो, वो इज एक्सपर्टाइज इन द स्ट्रक्चरल डिजाइन ऑफ द ब्रिज एंड बिल्डिंग। ऐसे करके हमारा जो फील्ड इंजीनियर को दे विल गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस जो फील्ड में इम्प्लीमेंट होगा, ये बारे में है। इसको बहुत से बेनिफिशियल होगा हमारा फील्ड इंजीनियर लोग को। ये सब प्रोग्राम हम लोग हमेशा करना। यू नो दैट हमारा जो वर्क्स डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का 60% ऑफ द बजट इज स्पेंड ऑन द वर्क्स डिपार्टमेंट, तो इंजीनियर लोग का इसको स्पेंड कर देता है। अगर उसको प्रॉपर्ली ट्रेनिंग नहीं करेगा, प्रॉपर्ली अपडेट नॉलेज नहीं होगा, तो वो वेस्टेज में जाएगा। पब्लिक मनी को स्पेंड कर रहा थ्रू द वर्क्स डिपार्टमेंट, थ्रू इंजीनियर खर्चा करता है। इसलिए उन लोग को अपडेट होना है नॉलेज में, आज का दिन में क्या चल रहा है, क्या क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गया, वो सब में बारे में बताना है। और हम गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को भी रिक्वेस्ट करता है उन लोग का बजट से 2 to 3% को ये कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग ऑफ इंजीनियर्स में स्पेंड करना है। हम लोग तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 6 month ट्रेनिंग वी हैव बीन अंडरगॉन 6 month ट्रेनिंग इन आवर इंसेप्शन टाइम में। हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में CPWD उधर में 6 month का ट्रेनिंग लिया। अभी का यहाँ में ट्रेनिंग भी मैंने कमती ले रहा है। इसलिए हम चाहता है इंजीनियर लोग को इक्विप करना है, अच्छा काम, क्वालिटी काम एग्जीक्यूट कराना है, तो दे मस्ट बी गिवन ए प्रॉपर ट्रेनिंग होना पड़ेगा। और प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ फाइनेंशियल रूल रेगुलेशन। अभी का दिन में तो कॉन्ट्रैक्टर लोग भी बहुत स्मार्ट है, जानता है, वो छोटा बात में आर्बिट्रेशन में जाता, केस में करता है। इसलिए आर्बिट्रेशन एंड डिस्प्यूट रिव्यू बोर्ड का भी सब्जेक्ट ये बार हम लोग ड्रॉ किया है, विच विल बी वेरी बेनिफिशियल टू द इंजीनियर फील्ड इन इंडिया। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर बसार, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है और कैपेसिटी बिल्डिंग का तो हम लोग जरूर मानते हैं। आपने जैसा बोला कि यहाँ बिल्डिंग बायलॉज को कोई मान नहीं रहा है, तो आप लोग देखिए बिल्डिंग कांग्रेस का आप लोग एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है अरुणाचल प्रदेश में, तो आप लोग क्यों इंसिस्ट नहीं करते हैं सरकार को कि बिल्डिंग बायलॉज इज द मस्ट, इसका अलावा बिल्डिंग ना बने? क्योंकि आप भूकंप का बात कर रहे हैं और यहाँ पहाड़ी इलाका है, कोई को 8 तल्ला 9 तल्ला 10 तल्ला बिल्डिंग बन रहा है, तो उसको आप लोग क्यों ये
कोई कार्रवाई नहीं करवा रहे हैं। दूसरा कि आज गवर्नर साहब काफी नाराज थे, लगता है कि ईटानगर का सड़क का बारे में लेकर के बोल रहे थे कि इंजीनियर का इंटीग्रिटी का ऊपर में भी डाउट हो सकता है यदि सड़क ठीक नहीं बनता है तो। आप देखिए बिल्डिंग कांग्रेस का आप चेयरमैन है अरुणाचल प्रदेश में, आप एक सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर है अरुणाचल सरकार में, आप क्या सजेस्ट करते हैं इंजीनियर लोगों को? सर ये सर उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी, स्पेशली जो मनोज सर ने कहा उसमें जो ड्रेनेज का भी सर सिस्टम बहुत खराब है। सर ये सब्जेक्ट मीटर है, मैं फॉर एग्जांपल लेता टॉक ऑफ द ये आपका बायलॉज, बिल्डिंग बायलॉज। मैंने अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, वो मेरा बनाने वाला डिपार्टमेंट है, इस वजह से स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हम 5 साल बैठ के वो सब रूल रेगुलेशन बनाए। हमारा टाइम में हम जबरदस्ती इंप्लीमेंट करना है बोले, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए द अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हैज़ बी क्रिएटेड। अभी म्यूनसिपलिटी रूल रेगुलेशन भी हमारा टाइम में हम ड्राफ्ट कराया, हमने असेंबली में पास कराया है, उसका बारे में भी हमको बहुत नॉलेज है अर्बन लोग का फंक्शनिंग में। तो अभी म्यूनसिपलिटी बनाया गया है, इट इज़ द म्यूनसिपलिटी लोग को इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो वाई दे आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग आई डो नॉट नो, और इम्प्लीमेंटिंग के लिए उन लोग को दिया गया और दे हैव बीन ऑथोराइज बाय द गवर्नमेंट, उन लोग का ड्यूटी होता है। इसलिए उन लोग का जो इसमें रूल रेगुलेशन हम लोग बनाया, जो डिजाइन करना है बिल्डिंग का, अप्रूवल लेना है, डिजाइन का बिल्डिंग का डिजाइन करके अप्रूवल लेना है, उसमें भी रजिस्टर आर्किटेक्ट, रजिस्टर सिविल इंजीनियर लोग का ड्राइंग करके साइन कराना है। जैसे लास्ट पुराना ज़माना में उधर में एक बार यहाँ में गुजरात में हुआ था ना, वो ये अर्थक्वेक 2001 में, सेम वे उसमें भी कोई किसी को पकड़ने नहीं सका। इसलिए यहाँ में जो आर्किटेक्ट इंजीनियर है, जो डिजाइन किया, बिल्डिंग को बना के दिया, सबमिट किया, अप्रूवल लिया, दे शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर, और कंस्ट्रक्शन जो एजेंसी है कॉन्ट्रैक्टर को। इसलिए ये रूल भी बना के रखा है, हमारा टाइम में बना के रखा है। इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय द अर्बन लोकल बॉडीज, द म्यूनसिपलिटी, उन लोग का ड्यूटी है। और जैसे अभी ये हाईवे के बारे में, तो बिफोर माई रिटायरमेंट हाईवे में हाईवे को भी हम ही रहा, मनोज जी ने जानता है। हाईवे का भी ऐसे बहुत से बात है, बहुत सा काम है, उसको भी इम्प्लीमेंटेशन के लिए अभी ये हाईवे अथॉरिटी जो अरुणाचल गवर्नमेंट का, जो हम लोग का हाईवे चीफ इंजीनियर जून्स है, उसको भी फुल पावर नहीं है। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बिल पासिंग होता है रीजनल ऑफिसर, उसको चेक करने के लिए और उन लोग एक एजेंसी अप्लाई करता है कंपनी का, लेके बिल को बनाता है। तो यहाँ का अभी हाईवे अथॉरिटी जो अरुणाचल का इंजीनियर लोग है, दे हैव टू ओनली सुपरवाइज कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा था। उन लोग का पास ऐसे जैसे बोलता दांत नहीं है, तीत नहीं है, ताकत नहीं है। दे हैव टू ओनली मॉनिटर द थिंग्स, ऐसे करो ऐसे करो, लेकिन उन लोग के पास पावर नहीं है। जैसे एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को नॉर्मल डिपार्टमेंट में पावर देता है, ऐसे में उसका पास बिल पासिंग का पावर नहीं है। उसको सिर्फ मॉनिटर करना है और ये लेवी ऑफ कॉम्पेंसेशन देना है। तो इसलिए थोड़ा सा वीक है, इसका अभी बहुत पीछे पड़ना पड़ता है हाईवे के लिए। रियली ये हाईवे का हमारा रिटायरमेंट के पहले हम उसको सेंक्शन कराया था। मेरा रिटायरमेंट अभी 5 ईयर्स होने का 6 साल रनिंग हो गया है। उसको प्रोजेक्ट को अभी कंप्लीट करना चाहिए। व्हाई इट इज़ नॉट कंप्लीटेड आई डू नॉट नो। उसको भी गवर्नमेंट एक रिव्यू लेना चाहिए। और ये देखने में इतना खराब है, देख रहा है हम लोग भी अदर अभी जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट अभी रिसेंटली हमने अगरतला में गया, सो नाइसली दे हैव बिल्डिंग सिल्डिंग, यो जो हाईवे भी बहुत बढ़िया से बनाया है कंट्री के लिए। हम लोग बहुत दुख लगता है इसको, जो एजेंसी जो है हम लोग का जो लोएस्ट बिडर को देना है बोल के एक सिस्टम बना है, उसको नहीं होना पड़ेगा। जो आदमी का पास लेट बिडर्स का नहीं, जिसका पास रिसोर्स अच्छा है, जिसका पास कैपेसिटी है, ऐसे आदमी को लोएस्ट बिडर नहीं होने से भी सेकंड थर्ड बिडर लोग को भी पूछ के देने से अच्छा है बोल के। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट इज ऑल्सो कंसिडरिंग दैट सिर्फ लोएस्ट में नहीं जाना है, L1 बोलते हैं, N1 में नहीं जाना है, उसका कैपेसिटी देखना है, उसका सब देखना है बोल के ये हो रहा है। अगर इसको इम्प्लीमेंट करेगा तो अच्छा से कर पाएगा। और हम लोग को बहुत दुख है हाईवे के बारे में। बिल्डिंग में टोटल 5 टेक्निकल सेशंस होंगे आपके, क्या क्या है सर थोड़ा हाईलाइट? नहीं, इसमें एक तो है आपका हिल रूट। जैसे हिल में हमारा पहाड़ी इलाका, अरुणाचल पहाड़ी इलाका है, कैसे उसको रूट बनाना है, कैसे सर्वे इन्वेस्टिगेशन करना है, कैसे उसको मिटिगेशन करना है, कैसे प्रोटेक्शन करना है, उसका बारे में होगा। नेक्स्ट इज द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग का अब तो जैसे बताया बिल्डिंग का बारे में है, बिल्डिंग तो हमारा सिस्मिक जोन में पड़ता है, 5 सिस्मिक जोन में पड़ता है। 8 कोई बाई चांस आएगा तो प्रॉब्लम होगा। उसका बिल्डिंग का बारे में कैसे उसको बिल्डिंग को 8 कोई प्रूफ बनाना है, कैसे करना है, उसका बारे में होगा। और नेक्स्ट इज द आपका रेट्रोफिटिंग एंड प्रॉब्लम इन द फील्ड। रेट्रोफिटिंग मतलब पूर्ण बिल्डिंग समझ जाइए। अभी गोल्डन ये जुबली हॉल ये हमारा टाइम में बना है, आज तो 20 साल होने को जा रहा है।
उसको भी कैसा स्ट्रेंथनिंग करना है पूर्ण हो जाने से। इसका बारे में इसको रेट्रोफिटिंग बोलता है, वो सिस्टम पूरा बताएंगे। जैसे हमारा आर्कोलॉजिकल ये कोई बिल्डिंग होगा, कोई पुराना बिल्डिंग होगा, सेक्रेटरीट बिल्डिंग, आपका असेंबली बिल्डिंग, जैसे ये इसको कैसे इसको स्ट्रिंग करना है वो उसका बारे में बोलेगा। और फील्ड में क्या क्या प्रॉब्लम होता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिल्डिंग प्रोजेक्ट इन द फील्ड, स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी कंट्रोल, वो सब का बारे में बताएंगे। नेक्स्ट जैसे आपको बताया है ये ब्रिज का डिजाइनिंग ऑफ द ब्रिज को कैसे बनेगा, आपको तो बताया है। ब्रिज का बहुत सा जगह में बड़ा बड़ा स्टेट में ब्रिज गिर रहा है, स्पेशली इन द बिहार में। तो उसका बारे में भी दे विल डिस्कस, ये डिस्कस करेगा। डिस्कस करके अच्छा से कैसे करना है, कैसे डिजाइन करना है, कैसे क्वालिटी मेंटेन करना है, वो सब में बोलेगा। क्या प्रिकॉशनरी मेजर लेना है, दैट विल बी डील्ड बाय दिस मिस्टर अताउल्लाह। थैंक यू वेरी मच।